ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಸಹ ಫೇಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 40 ಅಂಕಗಳನ್ನಾದರೂ ಪಡೆದು ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 40 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಲೇಖನ 38ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು 5 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದೆ ಪತ್ರ. ಇದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ದಿನಾಂಕ ಫಸ್ಟು 14/3/2026. ಈ ಕಡೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರೇಷಕ್ ಅಂದರೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವವರು. ಆಬಾಕ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. 10वीं ಕಕ್ಷಾ, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 27, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗದಗ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇವಾಮೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿತಿದೆಯೋ ಅವ್ರ ವಿಳಾಸ. ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗದಗ್. ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹೋದಯ್, ಮಾನ್ಯವರ್, ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿ. ಈ 3 ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹೋದಯ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ವಿಷಯ ಚುಟ್ಟಿ ಮಾಂಗತೆ ಹುए ಪತ್ರ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. हमारे घर में बड़े भैया की शादी है, मुझे भी शादी में भाग लेना है, इसलिए आपसे निवेदन है कि दिनांक 15/3/2026 से 17/3/2026 तक 3 दिन की छुट्टी की अनुमति दीजिए. ಧನ್ಯವಾದ, ಆಪ್ಕಾ ಛಾತ್ರ. ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆಬಾಕ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಪತ್ರ. ಇದೇ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ನಿಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದು 37ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 37, 4 ಅಂಕಗಳು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಪಾಠ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. प्रस्तावना. आज का युग इंटरनेट युग है. इंटरनेट विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है. आधुनिक समय में पूरी दुनिया में इंटरनेट एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है. यह एक नेटवर्कों का जाल है और कई सारी सेवाएं तथा संसाधनों का समूह है जो हमें कई प्रकार लाभ पहुंचाता है. लाभ. इंटरनेट द्वारा पल भर में कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं. संचार व सूचना दोनों क्षेत्र में अंतर्जाल एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है. इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है. वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा देश विदेश में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं, बेरोजगारी को मिटा सकते हैं. चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है. इंटरनेट सचमुच एक वरदान है. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. हानिया. इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर एक अभिशाप भी है. इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही हैं. मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाश में फंसे हुए हैं. पास अंतिದೆ, ಅದು पाश ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं. इसलिए हम लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए. उपसंहार, कंक्लूजन. ಇದು वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है. इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है. इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪದ್ಯದ ಮೇಲೆ 3 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ಆಗಿರುತ್ತದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 2 ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ಮಾತೃಭೂಮಿ के स्वरूप का वर्णन कीजिए ಅಥವಾ उसका परिचय दीजिए ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾತೃಭೂಮಿ का स्वरूप ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ 4-5 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ का रूप सुंदर है, एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है, उर में ಗಾಂಧಿ ಬುದ್ಧ ರಾಮ್ ಸೋಯೆ ಹೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ ವರ್ಣನ್ ಕೀಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬೈಹರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಅದರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಗದ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ. ಮಾತೃಭೂಮಿ का प्राकृतिक सौंदर्य ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತ್ ಕೆ ಖೇತ್ ಹರೇ ಭರೇ ಹೈ, भारत के खेत सुहाने हैं ಅಂದರೆ सुंदर हैं, भारत के वन में फल फूल भरे हैं, भारत भूमि में खनिज संपत्ति भरी हुई है ಅಥವಾ ಭಾರत के भूमि में अपार खनिज संपत्ति है ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಸಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಸಂತ್ ಏಕ್ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಲಡ್ಕಾ ಹೈ ಕೈಸೆ ಅಂತಿದೆ. ಬಸಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹುಡುಗ, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಉತ್ತರ, ಬಸಂತ್ ಏಕ್ ಗರೀಬ್ ಲಡ್ಕಾ ಹೈ, ईमानदारी से सामान बेचता है, बसंत मेहनत से पैसे कमाना चाहता है, बसंत भीख नहीं लेना चाहता था, घायल होकर भी राजकिशोर के पैसे लौटाता है, राजकिशोर से भी कोई मदद नहीं लेना चाहता, इसलिए बसंत एक ईमानदार लड़का है. ಇಷ್ಟು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಯಭಾಗ್ ಪೂರ್ಣ ಕೀಜಿಯೇ ಅಥವಾ ಕವಿತಾಂಶ ಪೂರ್ಣ ಕೀಜಿಯೇ. ಇದು 35ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದಿ ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ತುಳಸಿಗೆ ದೋಹೆ ಪದ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ 2 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ 3 ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ 3 ದೋಹೆಗಳಿಗೆ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಒಂದನೇದು, ಮುಖಿಯಾ ಮುಕ್ಸೋ ಚಾಹಿಯೇ ಖಾನ್ ಪಾನ್ ಕೋ ಏಕ್, ಪಾಲೈ ಪೋಸೈ ಸಕಲ್ ಅಂಗ್ ತುಳಸಿ ಸಹಿತ್ ವಿವೇಕ್. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है लेकिन विवेक पूर्वक सब लोगों का पालन पोषण करता है, सभी को एक समान न्याय देना चाहिए. नेक्स्ट, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए जब लग घट में प्राण. भावार्थ, प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों की जड़ होता है. सभी के प्रति दया रखनी चाहिए. नेक्स्ट, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरव जो चाहसी उजियार. भावार्थ, प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिदीप को रखो, राम नाम का जप करना चाहिए. ಪೂರಕ ವಾಚನದಿಂದ
ಶನಿ सबसे सुंदर ಗ್ರಹ. ಇದರಿಂದ ಶನಿ ಏಕ್ ಅತ್ಯಂತ ठंडा ಗ್ರಹ ಹೈ ಕೈಸೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು 23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ದು 2 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಶನಿ ಏಕ್ ಅತ್ಯಂತ ठंडा ಗ್ರಹ ಹೈ ಕೈಸೆ. ಶನಿ ಒಂದು ತಣ್ಣನೆಯ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? शनि ग्रह सूर्य से बहुत दूर है. शनि तक सूर्य का ताप बहुत कम पहुंचता है. तप अंतिदे ताप अंत ಆಗಬೇಕು. शनि पर तापमान 150 से नीचे है डिग्री सेंटीग्रेड ಅಂತ ಅದು. इसलिए शनि अत्यंत ठंडा ग्रह है. ಇನ್ನೊಂದು शनि का वायुमंडल कैसे बना है? ಇದು ತುಂಬ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. शनि का वायुमंडल हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है. शनि सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है. कैसे स्पष्ट कीजिए अंतिदे. शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चारों ओर वलय दिखाई देते हैं. प्रकृति ने शनि ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं. शनि के इन वलयों या कंकणों ने इस ग्रह को सौर मंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है. ಅನುರೂಪತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 9, 10, 11, 12 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 4 ಅಂಕ, ಒಂದೊಂದು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಬ್ ಫಲ್, ಗಾಜರ್ ಸಬ್ಜಿ. ಸೇಬು ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ಗಾಜರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ತರಕಾರಿ. ಕಪಡ ನಾಪನ, ಟೊಮಾಟೊ ತೋಲ್ನ. ಟೊಮಾಟೊವನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಳಿತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ನಿಬಂಧ, ಕಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಕಹಾನಿ. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ जीजा, शमसुद्दीन चचेरे भाई. नौकाएं बनाने वाला जलालुद्दीन, अखबार वितरण करने वाला शमसुद्दीन. पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, रामानंद शास्त्री. जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम. कलाम की माता आशियम्मा, कलाम की बहन जोहरा. हाथी जंगली जानवर, भैंस पालतू जानवर. मछली तैरना, सांप रेंगना. मकान की छत मछली की पीठ जैसी, मकान के स्तंभ हाथी के पैर जैसे. कर्नाटक चंदन का आगार, बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी. पंपा प्राचीन कवि, चंद्रशेखर कंबार आधुनिक कवि. गोमटेश्वर की प्रतिमा श्रवण बेलगोल, गोल गुंबज विजयपुर. पहाड़ गिरी, वारी जल. मातृभूमि भगवती चरण वर्मा, अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह तिनकर. दया धर्म का मूल, पाप अभिमान का मूल. संत का स्वभाव हंस के समान, मुखिया का स्वभाव मुख के समान. सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा, तुलसीदास राम भक्ति शाखा. जसोदा माता, नंद पिता. यशोदा गोरा रंग, कृष्ण काला रंग. भोला भाला कृष्ण, चुगलखोर बलराम. कृष्ण को चिढ़ाने वाला बलराम, चुटकी देकर हंसने वाले ग्वाल. प्रेमचंद जी का जी क्यों ललचा उठा? प्रेमचंद जी का जी रंगदार गुलाबी सेब को देखकर ललचा उठा. रोज एक सेब खाने से क्या लाभ है? रोज एक सेब खाने से डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं होगी. लेखक चीज़ें खरीदने कहाँ गए थे? लेखक चीज़ें खरीदने चौक गए थे. अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पुश्तैनी अथवा पूर्वजों के घर में रहते थे. कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तुएं क्या थी? पुस्तकें थी. सिंगफो आदिवासी कहाँ रहते थे? सिंगफो आदिवासी पूर्वोत्तर भारत में रहते थे.
आदमी को मकान बनाना किन किन जानवरों ने सिखाया? आदमी को मकान बनाना हाथी, सांप, भैंस, मछली आदि जानवरों ने सिखाया। सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने क्या किया? सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने मकान बना लिया। किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? बेंगलुरु नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात हैं? कर्नाटक में जोग, अब्बी, गोकाक, शिवन समुद्र आदि जलप्रपात हैं। आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है? मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है। तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? तुलसीदास मुख को मुखिया के समान मानते हैं अथवा मुखिया मानते हैं। तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या, विनय और विवेक हैं। यशोदा किसकी कसम खाती है? यशोदा गोधन की कसम खाती है। कृष्ण की शिकायत किसके प्रति है? कृष्ण की शिकायत बलराम के प्रति है। 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 2 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 24। कश्मीरी से पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? कश्मीरी से पाठದಿಂದ ಏನನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು? कश्मीरी से पाठ से हमें यह सीख मिलती है, अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरतें तो धोखा खाने की संभावना होती है। नेक्स्ट, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। जलालुद्दीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। जलालुद्दीन रामेश्वरम के स्थानीय ठेकेदार थे। वे शिक्षित थे, अधिक सामान्य ज्ञान रखते थे, पूरे इलाके में अंग्रेजी लिखने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। कलाम को हमेशा शिक्षित व्यक्ति, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते थे। कलाम के व्यक्तित्व निर्माण में इनका पात्र प्रमुख है। चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? चप्पली ಕಳ್ತನ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು? चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने सुझाव दिया कि देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है? बच्चों को स्कूल जाने की प्रेरणा और व्यवस्था करना, गांव को साफ सुथरा बनाना, गांव को हरा भरा रखने के लिए गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाकर गांव को आदर्श गांव बना सकते हैं। ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಶಕ್ತಿ के कारण ಅಂತ एक्स्ट्रा ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇಡ। कलेक्टर साहब ने बच्चों की बड़ाई में क्या कहा? कलेक्टर ಏನು ಹೇಳಿದರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ? कलेक्टर साहब ने बच्चों की बड़ाई में कहा कि गांव को साफ सुथरा देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। गांव को एक नया जीवन प्रदान किया गया है। इन बच्चों की जितनी बड़ाई की जाए उतना कम है। इन सब ने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है। बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय क्या है? आज मानव ने प्रकृति के
अनेक तत्वों को अपने नियंत्रण में कर लिया है। वायु, विद्युत और भाप अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। अपनी आज्ञानुसार पवन के ताप को भी बदल सकता है। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय, मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना, प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाना, बुद्धि को चैतन्य हृदय पर जीतना, भाईचारा, पारस्परिक प्रेम आदि के साथ जीना मानव का सही परिचय है। बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है? बालकृष्ण अपनी माता से शिकायतें करता है। मुझे भैया बहुत चिढ़ाता है, कहता है मुझे मोल लिया गया है। तुम्हारे माता पिता कौन हैं? यशोदा और नंद गोरे हैं, तू क्यों काला है? इत्यादि। मीना मैडम ने छात्रों से अंत में क्या कहा? आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। आज से नहीं, अब से ही आप इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो। नागरिक के कोई 3 कर्तव्य लिखिए। अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है। ಉಳಿದ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇದೇ PDF ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए. ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಮಮತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಖೋಜ್ ಹೈ ಕೈಸೆ? ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ को बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत क्यों थी? ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರೋಬೋಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಕರ್ನಾಟಕ की ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ವಾಸ್ತುಕಲಾ का ಪರಿಚಯ दीजिए. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ವಾಸ್ತುಕಲೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ. ಸಮಯ ಕಿ ಪಹಚಾನ್, ಆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕಿ ಚೋಟಿ ಪರ್ ಪಹುಂಚ್ಕರ್ ಬಚೇಂದ್ರಿ ನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ? ಎವರೆಸ್ಟಿನ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಬಚೇಂದ್ರಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು?